Hello dear students, I again welcome you, those students who are following the differential calculus course number first. This time we want to deliver lecture number 8. It will start now, applications of Leibniz theorem. In previous lecture number 7 we have proved the Leibniz theorem for you, detailed proof we have given there. Now we have some applications. No doubt I will share 2 or 3 lectures on the application of Leibniz theorem, so that you will be in a position to solve all the applications from your different books which have at your places. Let us now say we have the solutions of these. Solutions, we shall start the solutions of these. Our y is given by x cube e raised to power ax. It is the product of two functions. And you should remember here, I will write here note. In case y is equal to x raised to power m into some other function. This may be sine, this may be log, whatever this is. But if you have this x raised to power m, where m is some positive integer, means you have here x cube, you have here x square, you have here x4. You should always take in for the differentiation, take v is equal to x raised to power m in previous Leibniz theorem, lecture number 6th, because you can take the Leibniz theorem in other way also. We have proved it for yn is equal to nc0 un v plus nc1 un minus 1 v1 plus nc2 un minus 2 v2. You can go in this way also. Yn is nc0 vnu plus nc0 vn minus 1 u1. That is also true. You can choose. But if you use the previous theorem, in that theorem, when you come across in the product x raised to power some positive integer, take it v. Why it is so? If it is x cube, you see when you write the successive differentiations, v1 for x cube it is 3x square, then v2 it is 6x, then v3 it is 6, then ultimately v4 is 0. And it leads, whenever the function leads to constant and then 0, you should always take that v. So keeping this procedure in view, to find the nth derivative of this product, it is better to take here, I will take u here, e raised to power ax, because we know it is nth derivative. We should take v is equal to x cube. When you write v1, what is this? 3x square. When you write v2, what is this? It is 6x. When you write v3, what is this? It is 6. When you write v4, what is this? 0. That means I don't need in the Leibniz this theorem v4 term. I can stop from v4 and onwards. This is the benefit of this. Now here you write un. What is un? It is exponential. You have done it as nth derivative, e raised to power ax as it is. Differentiation of power is a, and nth derivative it is a raised to power n. No doubt here it will be log of base, but it is log of e to the base e, that is 1. It is the nth derivative. When you write un minus 1, what is that? It is again e raised to power ax. It will be a raised to power n minus 1. When you write un minus 2, what is this? E raised to power ax. It is a raised to power n minus 2. When you write un minus 3, what is this? E raised to power ax. It is a raised to power n minus 3, and so on. You will go this way. So applying Leibniz theorem. Thus by Leibniz theorem, differentiating using Leibniz theorem for nth derivative, because we use Leibniz theorem for finding out the nth derivative of the product of two functions. Let us go this way. What is this? It is yn is equal to, I will write it, nc0 unv plus nc1 un minus 1 v1 plus nc2 un minus 2 v2 plus nc3 un minus 3 v3 plus nc4 un minus 4 v4 plus so on to ncn
UVN. It is UVN. But in this question, in this case, my V4 is 0. So I don't need this V4. I will write this has terms Yn is NC0 in this problem. It is UNV plus NC1 U n minus 1 V1 plus NC2 U n minus 2 V2 plus NC3 U n minus 3 V3 plus 0, because my V4 is here 0. I can use the values now. Now values will be Yn. Let me write first NC0. What is Un? E raised to power ax, a raised to power n, then x cube. V is x cube. Then plus NC1, e raised to power ax, a raised to power n minus 1, V1 is 3x square. Then plus NC2, Un minus 2 you have here, e raised to power ax, a raised to power n minus 2. What is V2? It is 6x. Then plus NC3. What is Un minus 3? Un minus 3 is e raised to power ax, a raised to power n minus 3, and your V3 is 6. Let us simplify this. We will just simplify this. This is your, I will write again it, Yn is, if it is not visible, last setup may not be visible to you, NC0, e raised to power ax, a raised to power n x cube, plus NC1, e raised to power ax, a raised to power n minus 1 3x square, plus NC2, e raised to power ax, a raised to power n minus 2 6x, plus NC3, e raised to power ax, a raised to power n minus 3 into 6. Now I want to give you here, you should use this always, not to apply combination results again and again. एक ही बार इसको आप याद रखेंगे। आप कैसे जाना है हमें, देखो हमारे पास जो NC0 है वो ऑलवेज 1 है। कैसे? वो कम्बिनेशन फार्मूला लगा के n फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल यूजिंग 0 फैक्टोरियल 1 यू विल गेट दिस 1। ओके, इसी तरह आपको NC1 जो है वही फार्मूला लगाए, ये n के बराबर आएगा। इसी तरह आपको NC2 है, ये आएगा आपको n फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। अगर इसको आप ओपन करेंगे इट इज़ n इंटू n माइनस 1, यहाँ ब्रेक लगाएंगे n माइनस 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल मीनस 2 इंटू 1 इट इज़ 2, ये n माइनस 2 फैक्टोरियल इसके साथ गया। इसलिए आप याद रखें NC2 का वैल्यू है ऑलवेज n इंटू n माइनस 1 बाई 2 विदाउट गोइंग थ्रू दिस। नाउ जब भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा NC2 यू विल यूज़ इट n इंटू n माइनस 1 बाई 2। हाँ, अब NC3 के वक्त भी मैं बताता हूँ क्या करेंगे आप। देखिए जहाँ आपको NC3 है, देखो NC3 इट मीन्स n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। जब हम इसको ओपन करेंगे ये लिखेंगे हम n माइनस 1 n माइनस 2, यहाँ ब्रेक लगाएंगे फैक्टोरियल की n माइनस 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इज 6 ईयर n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसलिए मुझे NC3 जहाँ पे होगा NC3 वहाँ मैं डायरेक्ट क्या लिखूँगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 3 n माइनस 2, यहाँ पे आते हैं 3 फैक्टर्स डिवीजन बाई 6, ये आप याद रखिए। सो अकॉर्डिंगली तो मैं यहाँ पे अब यूज़ करूँगा ये डायरेक्ट, तो मैं बार बार ये कॉम्बिनेशन फार्मूला नहीं यूज़ करूँगा। NC0 इज़ 1, इट इज़ माई e रेज टू पावर ax, a रेज टू पावर n x क्यूब। ओके, प्लस व्हाट इज़ दिस NC1? इट इज़ n, इट इज़ e रेज टू पावर ax, a रेज टू पावर n माइनस 3 इंटू 3x स्क्वायर। ओके, व्हाट इज़ दिस NC2? हाँ, n इंटू
n minus 1 nc2 by 2 it is e raised to power ax a raised to power n minus 2 6x then plus nc3 आपने देखा n into n minus 1 n minus 2 by 6 it is e raised to power ax a raised to power n minus 3 into 6 ये और ये चला गया, ये आया 2 3s are। तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। वहाँ हमने दिया इसका राइट साइड भी, जो राइट साइड ये मांग रहा है प्रूफ, ये प्रूफ मांग रहा है, वहाँ पे प्रूफ भी हमने दिया वहाँ पे। सो हमारे yn क्या आएगा सिंप्लीफाई करके प्लीज़। आवर yn इज e raised to power ax a raised to power n x cube then plus this is 3 n x square e raised to power ax a raised to power n minus 3। यहाँ फिर आए, यहाँ पे आएगा ये प्लस 3nx, क्योंकि यहाँ पे x है, इट इज़ 3 और ये 3nx इंटू n माइनस 1 e रेज टू पावर ax a रेज टू पावर n माइनस 2। लास्ट पे क्या आएगा e रेज टू पावर ax a रेज टू पावर n माइनस 3 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2। आप यहाँ पर ही छोड़ सकते हैं, ये आंसर है। अगर आपको इसके बराबर प्रूव करना है तो वो भी हम कर सके। ये मांग रहा है कुछ और, चलो हम निकालेंगे कॉमन e रेज टू पावर। देखो लास्ट हाईएस्ट पावर जो है यहाँ डिक्रीजिंग पावर जो है a का a रेज पावर n माइनस 3, ये हम कॉमन ले गए यहाँ पे। आप देखिए क्या होगा, इट इज़ yn e रेज पावर ax थ्रू कॉमन आएगा और मैं कॉमन लाता हूँ यहाँ पे a रेज टू पावर n माइनस 3। अब यहाँ पे कॉशियसली लिखिए क्या होगा, e रेज पावर x आपने बाहर निकाला, ये है a रेज टू पावर n, a रेज पर आपने चूंकि a रेज पावर n माइनस 3 यहाँ से लिखा तो यहाँ क्या आएगा, इट शुड बी a क्यूब x क्यूब। क्यों ऐसा? जब आप a और a को मल्टीप्लाई करेंगे बेसिस सेम पावर ऐड, इट इज़ n माइनस 3 प्लस 3 दैट इज a रेज पावर n। देन प्लस यहाँ भी देखिए आप यूर e रेज पावर x आउट, यहाँ पे आपने निकाला a रेज पावर n माइनस 3 निकाला आउट, ओके। इट इज़ 3n x स्क्वायर, 3n x स्क्वायर यहाँ पे प्लस 3n यहाँ पे हमने a रेज पावर n माइनस 2, हाँ यहाँ पे आएगा ए वेट अ बिट, यहाँ पे देता वो 3n a स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पे हमने an है an माइनस 3 an माइनस 2 an माइनस 3 यहाँ पे 2 बार आया, यहाँ पे थोड़ा ये हमने लिखा यहाँ पे nc0 e रेज पावर ax an x स्क्वायर an माइनस 1। देखिए यहाँ पे नज़र डालिए, यहाँ पे an माइनस 1 ये टर्म है, दिस nc3 3x स्क्वायर, दिस इज an माइनस 1 हेयर, an माइनस 2 ओके, an माइनस 3 यहाँ पे हमारे पास है n माइनस 1। अब आप यहाँ लीजिए, जब आपने a रेज पावर n माइनस 3 लाया, यहाँ आना चाहे a रेज पावर n माइनस 1, दिस शुड बी a स्क्वायर। ये बाहर गया, ये आएगा 3n x स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। ठीक तरह से देखिए, जब ये a रेज पावर n माइनस 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा a रेज पावर n माइनस 1। यहाँ पे a रेज पावर n माइनस 2 बाहर, ये आएगा a आपका, ये भी बाहर, इट इज़ प्लस 3nx इंटू n माइनस 1, दिस इज़ आउट, दिस इज़ योर a। देन ये भी गया बाहर, इट इज़ प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2। तो आपका रिज़ल्ट यहाँ पे है yn इज़ e रेज टू पावर ax a रेज टू पावर n माइनस 3 इंटू a क्यूब x क्यूब प्लस 3n a क्यूब x क्यूब 3n, ये टर्म यहाँ पे नहीं है, इट इज़ दिस प्लस 3n a स्क्वायर x स्क्वायर, देन दिस प्लस 3n ax इंटू n माइनस 1, देन प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट।
अगर आप ये कॉमन भी नहीं लाएंगे तो यहाँ पर छोड़ेंगे, ये आंसर है, लेकिन यहाँ पे हमने करेक्शन की थी, यहाँ n-1 है। दिस इज a क्यूब x क्यूब 3n a स्क्वायर x स्क्वायर देन 3n n-1 इंटू ax n इंटू n प्लस 1 n-2। ये रिजल्ट हुआ कि अगर हमें यहाँ पे राइट साइड भी करना है प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस, वो मैंने दिया है वहाँ पे, वो भी हुआ, क्योंकि एक बुक में इसका लिखा है प्रूव दैट yn is this. It is good because you come to know how we solve it. ये इसका solution हुआ। Let us now take another application. Another application is, it is find the inner derivative of, second problem, it is y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। यहाँ कैसे जाएंगे, मैंने कहा जब भी आपको x का पॉजिटिव इंटीजर होगा 3, 4, 5 से उसको v लीजिए, जो अदर फंक्शन है उसको u लीजिए। लेट अस टेक u इज इक्वल टू लॉग x एंड वी विल टेक v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ, अब देखना है लॉग x का इनर डेरिवेटिव किया है आपने, जब आपको था u इज इक्वल टू, अगर आपको यहाँ पे v है या v मत लिखो, आप लिखो इनर डेरिवेटिव ऑफ दिस, अगर y हमारे पास था log ऑफ ax प्लस b, यह हमने ऑलरेडी किया है, आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाइए, ये आपको मिलेगा कम से कम 5th या 6th लेक्चर में आपको ये मिलेगा इसका इनर डेरिवेटिव। व्हाट इज़ yn? इफ़ यू रिमेंबर इट इज़ -1 रेज पावर n-1 फैक्टोरियल, यहाँ ax प्लस b का कोएफिशिएंट a रेज पावर n बाई ax प्लस b रेज पावर n, ये इसका इनर डेरिवेटिव है। अब यहाँ जाइए अकॉर्डिंगली, यहाँ आपको log x है, इसका इनर डेरिवेटिव क्या आएगा, un इज़ -1 रेज पावर n-1 फैक्टोरियल, x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 रेज पावर n हुआ यहाँ पे, दैट इज़ 1 बाय x रेज टू पावर n, ये इसका इनर डेरिवेटिव है। आपको ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे un-1 की ज़रूरत है, दैट विल बी -1 रेज पावर n-2, यहाँ भी आएगा n-2 फैक्टोरियल बाय x रेज टू पावर n-1। जब आप यहाँ पे n को रिप्लेस करेंगे n-1 से, यह आएगा n-2, यहाँ रिप्लेस कीजिए n-1 से, यह आएगा n-2, यहाँ n-1, फिर आप लिखेंगे -2 अगर ज़रूरत पड़ा, यह आएगा आपको -1 रेज टू पावर n-3, यह आएगा आपको n-3 फैक्टोरियल बाय x रेज टू पावर n-2। इस तरह आपने, हम देखेंगे यहाँ से कितनी ज़रूरत है, v1 इज़ योर 2x और व्हाट इज़ योर v2, इट इज़ 2, आपको v3 क्या है, 0। आपको v3 थ्योरम नहीं लिखना है, लेबनीज़ थ्योरम जब आप यूज़ करेंगे, बिकॉज ये वैनिश आता है v3 के बाद, इसलिए हम लिखेंगे अप्लाइंग लेबनीज़ थ्योरम फॉर फाइंडिंग द nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट यूजिंग लेबनीज़ थ्योरम for the nth derivative of the product. I will write yn. What is yn? It is nc0 u-n-v plus nc1 u-n-1 v1 plus nc2 u-n-2 v2 plus I will write here 0. y 0, इसके बाद मुझे आएगा v3 का वैल्यू क्या है, 0। I will not write v3 here. अगर आप लिखेंगे पहले स्टेप में फुल लेबनीज़ थ्योरम, दूसरे स्टेप में लिखेंगे ये, वो भी सही है, वो ज़्यादा सही है, क्योंकि आपने लेबनीज़ थ्योरम वहाँ फुल लिखा। हाँ, दिस इज़ yn, व्हाट इज़ nc0, ये मैंने आप बताया, ये 1 के बराबर आता है, दिस इज़ 1, व्हाट इज़ योर un, दिस इज़ -1 रेज पावर n-1, दिस इज़ n-1 फैक्टोरियल बाय x रेज पावर n, एंड व्हाट इज़ आवर v इज़ आवर x स्क्वायर, then plus what is nc1, it is n now, it is n, this will be -1 raised power n-2 factorial by x raised to power n-1, then v1 is your 2x, v1 is 2x, then plus then you have this nc2 का पता ही है, it is n into n-1/2, nc2 का वैल्यू un-2, what is un-2, वो आपने निकाला, it is -1 raised power n-3 into n-3 factorial by what,
but x raised power n minus 2 into v2 is 2, this and this goes. अब आपको ये सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट हम देंगे, जो ये मांग रहा है वो हम देंगे. ये मैं रब करता हूँ. चलिए, दिस इज, अगर हम ये एक्स स्क्वायर को नीचे लाएंगे यहाँ पे, आप देखो क्या हो रहा है. इट इज़ वाई एन इज इक्वल टू -1 रेज पावर n minus 1 into n minus 1 factorial. Be cautious, it is by x raised to power n minus 2. कौन सा x raised power n minus 2? ये जब नीचे लाया, फिर प्लस दिस इज, ये n minus 2 factorial है आपका. इट इज़ n into n minus 2 factorial, then -1 raised to power n minus 2. Okay, it is your 2x, ये x भी हम नीचे लाएंगे. ये वाला x जो है, जब हम इसको नीचे ले जाएंगे, x को यहाँ x को नहीं लिखेंगे, नीचे लाएंगे, ये आएगा आपको x raised power n minus 2, x raised power n minus 2 आएगा. ये भी ये 2 यहाँ पे रहेगा प्लस, ये लास्ट टर्म क्या है, शाबाश. इट इज़ n इंटू n माइनस 1, यहाँ मैं हूँ n माइनस 1 इंटू -1 रेज पावर n माइनस 3, देन n माइनस 3 फैक्टोरियल बाय x रेज पावर n माइनस 2. देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में सारी जगह आया आपको व्हाट, x रेज पावर n माइनस 2. x रेज पावर n माइनस 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं. थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई और करता हूँ. देखिए, वाई एन इट इज़ -1 रेज पावर n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल बाय x रेज पावर n माइनस 2 प्लस, ये जो है यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसको n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल बाय n माइनस 1. वेरी इंपॉर्टेंट सेटअप. मैंने ऊपर भी लाया इसको n-1, नीचे भी लाया n-1, क्योंकि जब आप n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखेंगे फैक्टोरियल नोटेशन से, आप लिखते हैं इसको n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल. यहाँ पे दो ही टर्म्स मुझे थे, n इंटू n-2 फैक्टोरियल, n-1 वाज मिसिंग. मैंने क्या किया, n-1 लगाया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. अब मैं इसको ये लिख सकता हूँ यहाँ पे n फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल नोटेशन. अगर आपने फैक्टोरियल नोटेशन आपने किया है, इट इज़ -1 रेज टू पावर n माइनस 2, यहाँ हमें भूल गया है, यहाँ पे है n माइनस 2 फैक्टोरियल, वो लिखिए आप. नहीं, n माइनस 2 फैक्टोरियल हमने लाया, वो हमने लिया इसके साथ, n माइनस 2 फैक्टोरियल तो लिया, वो इसके साथ आया. -1 रेज पावर n माइनस 2, और ये आपका है 2, यहाँ पे 2 वहीं रखे, देन प्लस, इसी तरह यहाँ पे है n इंटू n माइनस 1, यहाँ पे है n माइनस 3 फैक्टोरियल. आप ही बताए क्या है मिसिंग यहाँ पे, n माइनस 3 बाय x रेज पावर n माइनस 3. इसमें क्या होना चाहिए, n देन n माइनस 1 देन n माइनस 2 देन n माइनस 3 फैक्टोरियल पे ब्रेक. यहाँ पे मिसिंग है n माइनस 2, इसलिए मैं यहाँ ऊपर भी लगाता हूँ n माइनस 2, नीचे भी n माइनस 2, अगर ये रिजल्ट ये चाहता है. चलिए, ये आपको आता है yn इज़ -1 रेज पावर n माइनस 1 n minus 1 factorial by x raised power n minus 2. This is now your n factorial by n minus 1 into -1 raised power n minus 2 into 2. Then plus, यहाँ आप लिखेंगे n into n minus 1 n minus 2 n minus 3, नीचे लगाया जो मिसिंग था n minus 2, और अपना है इसको x raised to power n minus 2. It is -1 raised power n minus 3, x raised power n minus 2. अब ये चीज़ देखिए आप, फैक्टोरियल है यहाँ पे, ये चीज़ जो आपको है ये वाला n minus 1 n minus 2 n minus 3 factorial, this is also n factorial. This is yn is equal to -1 raised power n minus 1 n minus 1 factorial by, यहाँ भी हम करेंगे, यहाँ भी n मिसिंग है, यहाँ भी क्यों ना हम करेंगे ऐसा, यहाँ भी हमें करना था
यहाँ पे मैं लगाता हूँ यहाँ पे n और यहाँ पर भी रखूँगा n, बिकॉज n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल बना n फैक्टोरियल। यहाँ पे मैं लिखूँगा ये -1 रेज पावर n माइनस वन, दिस इज योर n फैक्टोरियल बाई n टाइम्स x रेज पावर n माइनस टू। हाँ, ये आएगा आपको +2n फैक्टोरियल -1 रेज पावर n माइनस टू बाई n माइनस वन। यहाँ आइए आप, ये सारा जो टर्म जो है इट इज सिंपली n फैक्टोरियल -1 रेज पावर n माइनस थ्री बाई n माइनस टू x रेज पावर n माइनस टू। ये हम यहाँ तक पहुँचे। अब कॉमन क्या क्या हम लाएंगे, देखो यहाँ पे आपको है x रेज पावर n माइनस टू, यहाँ पे है x रेज पावर n माइनस टू चल रहा है, यहाँ पे x रेज पावर n माइनस टू, x रेज पावर n माइनस टू, ये आप कॉमन लाएंगे। यहाँ पर भी x रेज पावर n माइनस टू, x रेज पावर n माइनस टू, x रेज पावर n माइनस टू, या आप बाहर लाए yn इज, और आप ला सकते हैं यहाँ पे n फैक्टोरियल भी, n फैक्टोरियल लाए फिलहाल आप n फैक्टोरियल न्यूमरेटर से और x रेज पावर n माइनस टू। फिर आप ज़रा देखिए क्या आगे अंदर रहता है। आई कैन राइट इट -1 रेज पावर n माइनस वन, n फैक्टोरियल बाहर बाई आएगा n बाई n। क्लियर? यहाँ से n फैक्टोरियल आउट, यहाँ से ये भी आउट, तो यहाँ मैं लिखूँगा इसको +2, ये जो है आई कैन राइट इट -1 रेज पावर n माइनस वन इंटू -1 रेज पावर वन, -1 रेज पावर -1। आप देखिए जब आप इसको करेंगे n माइनस वन, ये आएगा n माइनस टू दोबारा। सो दिस इज योर, ये आउट हुआ, ये n माइनस वन x रेज पावर, दिस इज n माइनस वन। देन यहाँ पे n फैक्टोरियल बाहर गया, इट इज़ प्लस, इस तरह जाएगा ये n फैक्टोरियल इट इज़ -1 रेज पावर n माइनस वन और -1 रेज पावर माइनस टू बाई n माइनस टू। अब देखना है आपको, अगर आपको ये यहाँ पे कही है, देखिए याद रखिए, अगर आपको है -1 रेज पावर -1, दैट मीन्स 1 बाई माइनस रेज पावर 1, इट इज़ -1। अगर आपको है -1 रेज टू पावर -2, दिस मीन्स 1 बाई -1 रेज पावर 2, दैट इज़ +1, बिकॉज -1 रेज पावर 2 इज़ पॉजिटिव। इसलिए मैं यहाँ पे, ये हुआ आपका +1, ये मैंने रीज़न दिया यहाँ पे, ये हुआ आपका -1, तो ये चीज़ लगा के आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिला। क्योंकि इस क्वेश्चन में ये मांग रहा है प्रूव दैट nth डेरिवेटिव इज गिवन बाय दिस। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब कि हमारा yn जो है, yn इट इज n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल, और हम कॉमन ला सकते हैं इसमें -1 रेज पावर n माइनस वन बाई x रेज पावर n माइनस टू। ये जो मांग रहा है वो हमने लिया, ये कॉमन, ये है 1 बाई n, ठीक है, ये भी कॉमन, ये यहाँ पे माइनस देखा आपने को वहाँ, ये -1 है, सो इट इज़ -2 बाई n माइनस वन। आइए यहाँ पे ये भी कॉमन आया, n फैक्टोरियल तो पहले ही कॉमन आया था, n फैक्टोरियल हमने पहले ही कॉमन लिया था, n फैक्टोरियल तो आउट हुआ, -1 रेज पर ये भी कॉमन, इट इज़ +1, इट इज़ सिंपली +1 बाई n माइनस टू। डू यू फॉलो मी? जस्ट लुक हियर, मैंने इसको ब्रेक किया, -1 रेज पर n माइनस टू, इसको मैंने लिखा -1 रेज पर n, क्यों किया ऐसा? क्योंकि यहाँ था मिनिमम -1 का पावर n माइनस वन, इसको लाया n माइनस वन पे -1 रेज पर, इसको भी लाया -1 रेज पर n माइनस थ्री को लाया -1 रेज पर n माइनस वन पावर में, फिर लिखा इसको -1 रेज पर -2, यहाँ आएगा आपको -1 रेज पर n माइनस थ्री, फिर मैंने यहाँ पे दिया -1 रेज पर -2 पॉजिटिव 1 होता है, -1 रेज पर -1 होता है नेगेटिव 1, तो ये यूज़ किया, तो ये रिजल्ट हमें मिला n फैक्टोरियल, दिस इज, ठीक है, यह आपको n फैक्टोरियल n माइनस वन रेज पावर n x रेज पावर n माइनस टू, 1 बाई n माइनस 2 बाई n माइनस 1 प्लस 1 बाई n माइनस 2, दिस इज हाउ वी गो। ओके, तो चलिए और भी हम दूसरी एप्लीकेशन देते हैं। एक और एप्लीकेशन करते हैं।
यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये देता है, एक क्वेश्चन है, यू आर गिवन y is x raised power n log x, prove y n plus 1 is n factorial by x। ऐसे क्वेश्चन में मैं इसके बाद ही आपको बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन में कहाँ कैसे हम जाएंगे, जहाँ हमें प्रूव करना है एक इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व होता है n+2, कोई इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व होता है n+1, कोई इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व होता है n+3। तो यह हमें बता रहा है कि हमें पहले ऑब्टेन करना है y1 इक्वेशन। जब हमने y1 को ऑब्टेन किया, उसको फिर किया nth डेरिवेटिव बाय लेबनीज़ थ्योरम ही कीजिए। सो आपको पता है y1 का nth डेरिवेटिव क्या आता है, yn+1। सो अकॉर्डिंग टू दिस मैं इसको सिंपल डिफरेंशिएशन करूँगा y1 लाने के लिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कॉशियस रहना। y1 प्रोडक्ट रूल से जाएंगे, ये क्या आएगा n-1 डाउन, सॉरी n डाउन, it is n down, x raised power n-1, फिर log x as it is, log of x as it is, then plus x raised power n, derivative of log x, what is derivative of log x, it is 1 by x। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे y1 आपका क्या आएगा, अगर हमने x को यहाँ पे LCM लिया इस तरह, ये आएगा n x raised power n-1 plus 1 log x, क्योंकि ये x जाएगा यहाँ पे एलसीएम से, इट इज़ ओनली x रेज पावर n, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई x को ले जाएगा यहाँ पे xy1 इज इक्वल टू, इट इज़ n x रेज टू पावर n सिंपली log x प्लस x रेज टू पावर n, ये इस तरह आया n x रेज पावर n log x प्लस x रेज पावर n। और भी देखिए आप, this is y1 n x raised power n-1 log x plus x raised power n, it is 1 by x, then this x goes here, it is n x raised to power n, okay, log x भी इसके साथ रहेगा plus x raised power n, तो ये x यहाँ जाएगा xy1 n x raised power n log x plus x raised power n। अब कैसे इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, let us differentiate n times, या यहाँ हम ज़्यादा ये आसानी से करेंगे, ज़्यादा आसानी से, ये जो मेरे पास x रेज़्ड पावर n log x है, x रेज़्ड पावर n log x वो y के बराबर है ना, by first it is xy1 is equal to ny, because it is x raised power n log x plus x raised power n। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट n टाइम्स बाय लेबनीज़ थ्योरम। हाँ, यहाँ पे कॉशियस रहना, यहाँ पे कॉशियस अब रहना, ठीक से देखना। अब आपको आगे ऐसे वाले इक्वेशंस आएंगे, ऐसे इसको कैसे हम करेंगे। जब आप इसको nth डेरिवेटिव के लिए जाएंगे, ये मैंने ऑलरेडी बताया, जब आपको x के पावर से x1 x2 x3 वगैरह वो आप लीजिए v के बराबर, ये लेना है आपको u के बराबर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब आपने u को लिया बराबर log y1, u लिया आपने y1, इसका nth डेरिवेटिव क्या आएगा, व्हाट इज़ un, इट इज़ योर yn+1 nth डेरिवेटिव। अगर आपको निकालना है yn-1 वो un-1 वो यहाँ से जाएगा, इट इज़ yn। जब आपको लेना है un-2 क्या आएगा, yn-1 -1 ये मतलब ऐड होता है। कीजिए इसको डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लेबनीज़ थ्योरम। कैसे करेंगे आप, शाबाश, nc0 un, इट इज़ योर u, इसका n डेरिवेटिव y n+1, do you follow me, v as it is, what is your v, x as it is, then plus दूसरे टर्म लेबनीज़ थ्योरम का nc1 un-1, इसका डेरिवेटिव डिक्रीज जब आप करेंगे un-1 देयर, व्हाट इज un-1, इट इज सिंपली yn, इट इज yn, x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव है 1, देन प्लस अगर आप दोबारा जाएंगे क्या आएगा, nc2, इसका डेरिवेटिव un-1,
that is yn minus 1, which means un minus 2 there. But here this is your v, this is your v1. what is v2? it is 0. this term will not survive here. दो ही टर्म इसमें आएंगे क्योंकि x है यहाँ पे. अब यहाँ पे आए इज इक्वल टू n, यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है ना, n कांस्टेंट है, n तो n ही रहेगा. y का हमें क्या लेना है? n डेरिवेटिव, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लाइबनिज थ्योरम. इसका n डेरिवेटिव आएगा yn प्लस x रेज टू पावर n, इसका n डेरिवेटिव स्टार्ट में आपने किया. अगर हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर m, उसका n डेरिवेटिव क्या आता है? एक्स रेज पावर m का m इंटू एम माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 3 सो ऑन टू m माइनस n प्लस 1 yn. अगर वो हमें निकालना है इस तरह, हमारे पास y है एक्स रेज पावर n, इसका n डेरिवेटिव क्या आएगा? yn. याद रखिए वो आपने किया है, इट इज़ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सो ऑन टू 1, एक्स रेज पावर 0 आता है. यह है आपका n फैक्टोरियल. अगर y है एक्स रेज पावर n, इसका n डेरिवेटिव है, n डेरिवेटिव आई मीन इट इज़ n फैक्टोरियल. अगर आपका m डेरिवेटिव निकालना है वो आएगा डिक्रीजिंग पावर में, m इंटू एम माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 3, फिर आएगा लास्ट पे एक्स रेज पावर n माइनस m. वेल इसका n डेरिवेटिव क्या है हमें? n फैक्टोरियल, एक्स रेज पावर n का. ओके, यू नो दिस इज 1, दिस इज एक्स वाई n प्लस 1. मैं ऊपर लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, आपको मत यहाँ. आइए यहाँ पे अब ये जो आपका है NC0, दिस इज़ 1, दिस इज़ x y n प्लस 1 प्लस व्हाट इज़ NC1? इट इज़ n yn इज इक्वल टू n yn. दिस इज़ योर n फैक्टोरियल, दिस एंड दिस गोज, योर y n प्लस 1 इज़ n फैक्टोरियल बाय x. ये मांग रहा था ये yn प्लस 1 इज़ n फैक्टोरियल बाय x. देखो मैं आपको एक यहाँ पे आपके लिए अब आगे वाले जो आएगा आपको आम क्वेश्चंस, वो आप इस तरह आप देखें. अगर मेरे पास ऐसी इक्वेशन है, सपोज आई एम आस्क्ड नोट, ये नोट में लिखे, बार बार मैं नहीं बताऊंगा. फाइंड nth derivative of, say it is 1 minus x square y2. इसका nth डेरिवेटिव कैसे मैं निकालूंगा? या x स्क्वायर माइनस 1 y3, x स्क्वायर माइनस 1 y1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 समथिंग. याद रखिए अब ऑलवेज ये करना चूज़ v के बराबर, ये करना चूज़ u के बराबर, तभी आपको इक्वेशन में आएगा yn प्लस 2. ये इस तरह जाएगा. आप जब आप इसको nth डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ dn ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 विद रिस्पेक्ट टू x. इट इज़ nth डेरिवेटिव ऑफ दिस. शाबाश. क्या आएगा? NC0 un, u इज़ दिस, इसका nth डेरिवेटिव yn प्लस 2, v एज इट इज़, v इज़ दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर. शाबाश. दूसरी टर्म प्लस NC1. सिंपली अब याद रखना इसका डेरिवेटिव, अब ये मान लीजिए इस तरह लेमैन्स लैंग्वेज से डिक्रीज़ हो रहा है बाय 1. यहाँ था n प्लस 2, ये जाएगा अब n प्लस 1, एक एक डिक्रीज़ करके y n प्लस 1. इसका अब डेरिवेटिव आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म में हम लिखते हैं v एज इट इज़, सेकंड टर्म में लिखते हैं v1. इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस 2x. डू यू फॉलो मी? देन प्लस NC2, इसका आएगा yn, एक से डिग्री, इसका डेरिवेटिव माइनस 2. देन प्लस NC3 yn माइनस 1, माइनस 2 का 0, ये टर्म आएगी नहीं. तो हमें आएगा यहाँ पे ये क्या आएगा इक्वेशन इसका? 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, देन इट इज़ माइनस n into n minus 1 by, it is only n, this is only n here, it is n, this is minus 2 nx y n plus 1. now this is minus
n इंटू n माइनस 1/2 और ये वाला 2, ये वाला माइनस यहाँ रखा, इट इज़ वाई एन, ये 2 गया. इट इज़ योर हाउ टू फाइंड आउट द एन डेरिवेटिव ऑफ सच प्रोडक्ट. इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, y1, y2, y3 इन्वॉल्व है और कोई एल्जेब्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है. तो आमतौर पे यही आएगा आपको आगे वाले प्रॉब्लम्स में, जो आपको किसी भी बुक में आपको प्रॉब्लम्स है, आपको ऐसा आएगा वहाँ पे. अब ये आपको वहाँ पे देखना है कि हमें कैसा पता चलेगा कि हमें y2 को करना है एन डेरिवेटिव या y3. वो आपको ज़रूरी होगा वहाँ पे रिज़ल्ट, प्रूव दैट दिस इज़ इक्वल टू दिस. जब आपको रिक्वायर्ड रिज़ल्ट में, जो आपको रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है, जो आपको निकालना है वहाँ पे आपको yn+3 इन्वॉल्व है. मीन्स आपको इक्वेशन डेवलप करनी है जिसमें y3 थर्ड डेरिवेटिव तक जाना है. अगर आपको yn+2 है, मीन्स आपको इक्वेशन को ऐसा करना है, उसमें डेवलप करना है y2 पे, एक इक्वेशन डेवलप करनी है y2 पे. जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था इस वाले क्वेश्चन में, मुझे वहाँ पे आंसर में था yn+1. मैंने एक इक्वेशन डेवलप की है जिसमें इन्वॉल्व हो गया y1 को किया मैंने nth डेरिवेटिव yn+1. इसी तरह ये है, इस तरह आप जाएंगे आगे वाले क्वेश्चंस. तो नेक्स्ट में आपको कुछ और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लेके आपके सामने आऊँगा और एक दो लेक्चर और देंगे. ये 8th था इसमें, डिफरेंशियल कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ लेबनिज़ थ्योरम. आई होप एंड यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.